Hello guys, today I have Gurkirat Singh Gill on my channel and he will be giving us preview for World Test Championship final and he will answering us some questions regarding the final. So Gurkirat, welcome to my channel and please give your quick introduction to my viewers. Thank you, Virgo. Very happy to be on this channel and discuss cricket. I'm actually always happy to discuss cricket, regardless of what time of the day or what time of the month it is. A little bit about myself. I know I'm here as an expert and an analyst, but I don't like to call myself that. I just call myself as a wannabe analyst because I think I'm still learning about the game. There are a lot more people who know more than me about the game, so there's obviously a lot there to learn about it. And there are people who know much more about the game. So I personally don't think that I am an analyst or an expert yet, but yes, I am a cricket enthusiast, so that is what I like to call myself. Apart from this, I also have a YouTube channel of my own wherein I invite people from the sports industry, be it journalists, be it authors, people in the broadcasting industry, or even writers. I've had a few people come on the show so far. There've been 5 episodes. I'd like you to check out. The name of the channel is Gilly Cricket, and the name of the show is Gupshup with Gil, where we are just having conversation. So that is more or less about me. I do all of this in my free time. And yeah, today, like I said, I'm very happy to be on the show and discuss cricket. So you Thank can you. shoot your questions. Guys, I have added the link of Gilly Cricket in description so please subscribe to that channel. Okay, so Gurkirat, we are starting. First question is that there have been reports that Ishant Sharma won't play the final, and India will play Mohammad Siraj in his place, or Mohammad Siraj will play definitely. So there are reports these kind of. So what do you think about it? Will India play Uh, Mohammad Siraj or so over the course of years that I've followed Indian cricket, I've learned not to take these reports seriously because there's no basis to a lot of these reports. You never know, what is the source. Maybe someone has just floated it around to somewhat get a few views and get a conversation going. As far as I'm concerned, I don't think Ishant Sharma will not play. I just posted very recently that his record since 1 January 2015 is as good as Stuart Broad's. yes? His economy rate, his average, and his strike rate is both better than Stuart Broad's. Stuart Broad's strike rate is 55 since January 2015. Ishant Sharma's 52. Stuart Broad's average, I think, is around 25 point something. Ishant Sharma's 24. The economy rates are very similar. Apart from this in this Indian pace attack, there is no one like Ishant Sharma who can bowl long spells and bowl dry when nothing's happening off the pitch. He's someone who can give you 7 8 overs on the trot without giving you much without giving many runs away. So I don't think that Ishant Sharma will be dropped. I think he'll be the second pacer, if not the first, along with Jasprit Bumrah. The only call which is to be taken is between Mohammad Shami and Mohammad Siraj, because of Shami's inconsistency. I know he has more experience than what Siraj has. This is his second tour because he was there in 2014 as well. But we have seen him, blow hot and blow cold. And in a game like WTC, you anyway, can't let the first innings go away and be in a deficit. A lot of the test match are decided on the basis of how the first innings goes. So that is where Mohammad Shami's form can be a little bit of a concern. He's a class bowler. There is no doubt about it. But like I said, since it's just one test match and you wouldn't really want to take that much of a risk, there's a possibility that India might play Mohammad Siraj. But if you just go by experience and everything, then you'd like to see Ishant, Shami, and Ishant, Oh, no, Bumrah, sorry, Bumrah. So this I think would be the pace attack, unless India choose to play four paces wherein you could see both Siraj and Shami playing. But I don't see that happening. okay. So is there any chance of Ashwin and Jadeja both playing or any one of them playing? I think both of them should play. I think both of them should play because we sometimes get into this debate that maybe the pitch will not suit two spinners, but we also have to realize that Ashwin and Jadeja are probably Legend. the best bowlers of this bowling attack. If you look at the history, Ishant Sharma has the most Ashwin has the most wickets. Then there's Ishant, and then there's Jadeja. And it's not that these guys deliver only in the second innings. We've seen them do well in the first innings as well. We can take our mind back to Melbourne, first innings on the first day. I think Ashwin got 4 wickets, if I'm not wrong. He got Four wickets and Steve Smith Smith. out. He got
He got Smith out, he got Matthew Wade out, he got Tim Payne out, and he got one other wicket as well, I think, or maybe just 3 wickets. So it's not that they are effective only in the second innings. Also, if the pitch has bounce, then the likes of Ravindra Jadeja and Ashwin would really enjoy bowling on it. Because if you look at the trajectories that they bowl, someone like an Ashwin uses bounce really well. He's also tall. He's somewhere around 6 feet, and he knows how to vary his angles. He can come close from the closer stumps and take the ball away very slightly and just let it bounce a little bit more. Someone like Ravindra Jadeja also with his pace can actually trouble the batsman even more, because when he's in his rhythm and bowling all those overs quickly, he really doesn't give you anything away. Apart from that, I don't think there's anyone else apart from Ravindra Jadeja who can be the best fifth bowler, because what you need from a fifth bowler is to, if not take wickets, then at least bowl dry and not give any runs. And no one in this attack can do it better than Ravindra Jadeja. I'd say Ishant Sharma is the best amongst pacers, and if you want to extend it to the spinners as well, Ravindra Jadeja is the best at it, because he will just finish off his overs in no time and give you no relief. So also, Ravindra Jadeja's record against someone like Ross Taylor is also good. Ross Taylor struggles. If you see, most batsmen who struggle against Ravindra Jadeja are the ones who try and keep their pad forward and then bring the bat. And with Jadeja's pace, that's always a huge danger, because he doesn't allow you that time to get your bat in front, especially when he bowls those quicker ones. So that I don't see any reason to not play Ravindra Jadeja and Ashwin. For me, the 5 bowlers that India should play are Jadeja, Ashwin, in the batting order, in the order which they'll bat. Okay. Jadeja, Ashwin, then Ishant, then Shami or Bumrah, and whosoever you can decide who you want to have as 10, or you can have number 11. But this should be the bowling attack as far as I'm concerned. And will New Zealand play four seamers? Because Matt Henry played recently Test match and he won Man of the Match. And Trent Bolt also played in previous match. Tim Saudi performed and Jamieson is performing since last year. So will they play four seamers, or they will give a spinner a chance? I think they could even play 5. They've dropped Mitchell Santner, Yes, they and have. there's the only option that they have as a spinner is someone like Jas Ajaz Patel. Patel. And if they, like you said, if they might play Matt Henry, then there's a possibility that they could drop someone like a Colin de Grandhomme, and they could have Jamieson at number 7, and then your 4 bowlers would be Matt Henry, Tim Southee, Trent Bolt, and Neil Wagner. So you could go in with that pace attack as well. It would be a very bold move to go with that pace attack. What it would ensure is, it would ensure that the Indian batsmen have no leeway whatsoever. Because there's only one risk, is that is your batting becomes slightly shorter, because your last recognized batsman is BJ Watling at number 6. I know Jamieson can bat. I know Saudi can bat. Even Neil Wagner. Wagner can bat. But it would be taking a little bit of a risk uh, in such conditions, especially if it's overcast or green. Then you could see that Indian paces may hopefully wrap the tail early. But I wouldn't say that it's a bad decision, or it's a move which is not worth taking, because if you see, if you don't have a spinner in that attack, you are either forced to bowl those 5 bowlers, and all of them will keep troubling the batsman. Someone like a Chiteshwar Pujara will not get a leeway. He might keep blocking and not score, but he will not be able to score runs as well, because he tends to attack the spinners. So all your risks will have to be taken against pacers who are genuine wicket taking options. And someone like an Ajaz Patel can actually feed into the likes of Rishabh Pant and Ravindra Jadeja if they want to attack him. So there's a good possibility that New Zealand may not play a spinner at all. And if that happens, it would be very interesting, because India might be going in with 2 spinners. यस। और पिछले कुछ समय में मैंने नोटिस किया है कि अजिंक्य रहाणे को काफ़ी ट्रोल किया गया है सोशल मीडिया पे कि वो एक ही मैच में चलते हैं और कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन मैंने नोटिस किया पूरे चैंपियनशिप में कि रहाणे ने जब भी बैटिंग करी, अगर इंडिया का स्कोर है 16 पे 3 या 25 पे 3, तो वहाँ से सेंचुरी लगाई है या एक अच्छी पार्टनरशिप करी है जो भी खिलाड़ी खेल रहा है, और फिर वो हम मैच जीत जाते हैं बाद में। तो क्या अजिंक्य रहाणे सही में काफ़ी इनकंसिस्टेंट हो गए रिसेंट टाइम में, या उनकी वैल्यू कम हो गई टीम में? क्योंकि अगर इंग्लैंड में रिकॉर्ड देखें रहाणे का तो बहुत अच्छा है। तो अजिंक्य रहाणे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, पर एक दो चीजें हैं ये एक ऐसा पहलू है जिसपे दो चीजें हैं। पहली बात, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी और इन टर्म्स ऑफ टैलेंट अजिंक्य रहाणे शायद इंडिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। मैं तो ये तक कहूंगा कि जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था, वो इन टर्म्स ऑफ स्किल विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा दोनों से आगे थे। बिकॉज अगर आप उनकी गेम देखें, उसमें कोई अ, खास वीकनेस नहीं है कि आप पॉइंट आउट कर सकें कि एक पैटर्न है डिसमिसल का। मेरे को नहीं लगता कोई भी कह सकता है कि अजिंक्य रहाणे की बैटिंग में कोई पैटर्न है डिसमिसल का। हाँ मतलब देखा था एक पॉइंट पे विराट कोहली के साथ एक पैटर्न था डिसमिसल का कि वो ड्राइव करने आते थे और स्लिप स्विंग और फिर आते थे। आउट स्विंग, हाँ हमने हमने देखा था कि चेतेश्वर पुजारा जो है वो बोल्ड हो रहे थे बोल्ड हो इन द रहे थे। लेट, एंड अभी वो एक ऐसी बॉल पे आउट होते हैं जो कि मेरे को लगता है किसी कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता है, जो कि जस्ट कोई नहीं खेल सकता। ऑफ स्टंप पे पिच होके उनको लीव करती है। तो ये पैटर्न्स हैं। बट अगर आप अजिंक्य रहाणे का डिसमिसल देखें तो आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा। आप वो सीरीज उठाइए जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है, एडिलेड में वो फर्स्ट इनिंग्स में एल्बिडब्ल्यू आउट हुए, जहां पे मेरे को लगता है कि उनकी कंसंट्रेशन वो रनआउट के बाद हाँ थोड़ी वो विराट रन आउट। ऊपर हो गई। उसके बाद अगर आप सेकंड इनिंग्स देखें तो अगेन बहुत अच्छी बॉलिंग थी, वो क्रीज पे स्टक हो गए अगेंस्ट हेजलवुड। और अगर आप देखें मेलबर्न में, तो फर्स्ट इनिंग्स में तो वो रन आउट ही हुए हैं, सेकंड इनिंग्स में वो नॉट आउट थे। आप देखें जो सिडनी का मैच था, सिडनी में दो इनिंग्स थी, एक में वो क्या कहते हैं बोल्ड हुए कट करते हुए बॉडी से क्लोज, और दूसरे में वो नेथन लायन को आउट हो गए अगेन फ्रॉम द क्रीज। हाँ वो एंड आप अगर गैबा का देखें दोनों मैचेस, तो पहली इनिंग्स में उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो आउट हो अटैक करने की, वो दो बारी बचे, बट तीसरी बारी फिर स्लिप्स में वही ड्राइव मारते हुए आउट हुए अवे फ्रॉम द बॉडी। एंड फाइनल इनिंग्स में वो एग्रेसिव होने की कोशिश में, एग्रेशन में उन्होंने एक लो परसेंटेज अपर कट ट्राई किया पैट कमिंग्स के पैट साथ, का। वो नहीं आया तो आउट हो गए। तो पैटर्न नहीं है कोई एक डिसमिसल का। अगर आप इंग्लैंड वाली सीरीज भी उठाएं जो इंडिया में हुई, पहली फर्स्ट इनिंग्स में जो चेन्नई में था, तो वो बहुत अच्छा मतलब एक बहुत अच्छा कैच था, वो कोई बॉल नहीं थी और जिस पे कोई ड्राइव बैट्समैन करते आउट। हो। उसके बाद एंडरसन को शायद वो बेटर खेल सकते थे जब वो बोल्ड हुए उनको, क्योंकि उनको पता था क्या बॉल आनी है, वो जस्ट एलबीडब्ल्यू बचे थे। फिर चेन्नई में सेकंड फर्स्ट इनिंग्स में अगेन वो अच्छी बैटिंग करी, पर एक बहुत ही बुरा शॉट खेला क्योंकि वो बॉल वहां पे नहीं थी स्वीप करने को। उसके अलावा अगर आप सेकंड इनिंग्स देखें, फिर क्रीज से उन्होंने अगेन बहुत ही अनकैरेक्टरिस्टिक तरीके में आउट हुए थे जैक लीच को, आई थिंक। एंड फिर थर्ड टेस्ट मैच उठाए अहमदाबाद में, तो वहां पर भी आई थिंक कट करने गए थे शायद स्पिनर को, तब आउट हुए थे, नॉट एग्जैक्टली श्योर। एंड फिर जो फोर्थ टेस्ट मैच था, वहां पर भी आई थिंक अच्छी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, पर हाफ एक सेंचुरी बहुत लगाई। ही बुरा शॉट खेला था। बेन स्टोक्स को आउट हुए थे कट मारते हुए बाहर की विकेट पे, बाहर की बॉल पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उनके डिसमिसल्स हैं वो उनकी गलतियों से ज्यादा होते हैं रादर देन बॉलर उनको आउट करे, जिसकी वजह से थोड़ी फ्रस्ट्रेशन रहती है। क्योंकि ये कोई आपके 10 या 15 टेस्ट मैच खेले हुए खिलाड़ी नहीं है, ये आपके उप कप्तान है, ये आपके बहुत ही एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 70 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो जिसने 70 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं, आप उनसे इस तरीके के डिसमिसल्स एक्सपेक्ट नहीं करते, इसलिए उनकी आलोचना थोड़ी ज्यादा होती है मुझे लगता ओके। है। और यही है, तो मतलब उनकी क्वालिटी पे किसी को शक नहीं है, बिकॉज हमने देखा है कि जब मुश्किल घड़ी में उनको बैटिंग करनी होती है, तो उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छी पारियां खेली हैं। जो चेन्नई में उन्होंने पहली इनिंग्स में बैटिंग करी थी, दूसरे टेस्ट मैच में वो बहुत अच्छी बैटिंग थी। फिर उन्होंने जो मेलबर्न में शतक किया था, वो भी बहुत अच्छा है। वो मतलब मैं कहूंगा कि एक शतक इस टाइप का था जो कि एक वीवीएस लक्ष्मण की क्लास का था, बिकॉज उन्होंने लेट इतना खेला था, चाहे फ्रंट फुट पे भी खेल रहे थे, वो बैट का फेस बहुत लेट खोल रहे थे। एंड अगर हम पिछले टूर की बात करें इंग्लैंड में, तो उन्होंने ट्रेंट ब्रिज में विराट कोहली के साथ एक बहुत अच्छी पारी करी, वो पार्टनरशिप करी थी जिसमें उन्होंने 80 रन किए थे। और फिर उन्होंने साउथहैम्पटन में सेकंड 50। इनिंग्स में एक 50 करी थी, वो भी अच्छी थी। और फिर अगर हम लॉर्ड्स में देखें 2014 में, तो भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी जब 100 करा था। तो क्वालिटी में किसी को शक नहीं है, पर इनकंसिस्टेंसी होगी अब, जो कि और इनकंसिस्टेंसी स्पेशली अच्छे ओपोनेंट्स के साथ ज्यादा होने लगी है, तो इसलिए आलोचना होती है। तो ये वाली बात है। ये ये इट्स अ केस ऑफ एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर आउट ऑफ समवन हु यू नो कैन डिलीवर बेटर। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 70 से ज्यादा टेस्ट मैचेस में अजिंक्य रहाणे की जो एवरेज है, वो
45 नहीं है, वो उनकी औसत 45 से कम है, और उन्होंने अभी आज तक एक भी दोहरा शतक नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक ही स्कोर किया जो कि 150 के ऊपर है, जो कि उनका हाईएस्ट है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंदौर में जब उन्होंने किया था 2016 में। तो मेरे को लगता है हर कोई ये बात तो मानेगा ही कि अजिंक्य रहाणे जो है वो इससे तो बेटर खिलाड़ी है, कि वो एक दोहरा शतक तो कर ही सकते हैं टेस्ट मैचेस में। एंड 45 से ज्यादा उनकी एवरेज होनी चाहिए। उनकी एवरेज जो है अभी वो एंजेलो मैथ्यूज जितनी है, शायद एंजेलो मैथ्यूज से कम है। एंजेलो मैथ्यूज की शायद 42 कुछ है, एंड अजिंक्य रहाणे की शायद 41 कुछ है, या शायद बढ़ गई होगी। पर अजिंक्य रहाणे जो है एंजेलो मैथ्यूज से तो बेटर बल्लेबाज हैं, और 45 से ज्यादा तो एवरेज उनकी होनी चाहिए। इससे उनकी आलोचना होती है, क्योंकि वो जो अपने पास स्किल है वो मेरे को लगता है उसका पूरा तरीके से फायदा नहीं उठाता। और अगर हमारा स्कोर फाइनल में अगर 30 पे 3 हो जाता है एग्जाम्पल, तो आप अजिंक्य रहाणे को ही सेंड करेंगे या ऋषभ पंत को भेज देंगे? डिपेंड करता है किस 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 हिसाब से बॉलिंग हो रही है, कौन बॉलर है। अगर तो आपको लग रहा है कि सिर्फ ट्रेंट बोल्ट और नील वैगनर जो है वो दाएं हाथ के बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं अंदर आती हुई गेंद से, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप ऋषभ पंत को भेज दें। पर अगर आपको लग रहा है कि ये जो विकेट्स गिरी हैं, ये विकेट्स गिरी हैं खराब बल्लेबाजी से, ना कि अच्छी गेंदबाजी से, तो आप चाहेंगे कि अजिंक्य रहाणे जो कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वही जाएं बाहर और एक अच्छी पारी खेलें, जहां पे वो पहले थोड़ी स्थिति को सुधारें, जैसे कि स्थिति रहती है उस वक्त मैच में। और फिर उसके बाद जब आपको जरूरत पड़े तो आप ऋषभ पंत को भेज सकते हैं थोड़ी आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए। पर सीधा ऋषभ पंत को 30 पे 3 भेजना भी शायद सही ना हो, अगर अगर स्पेशली वो आपके टिम साउदी और मैट हेनरी परेशान कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैटिंग नहीं कर सकते, बिकॉज ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी करी है और काफी अच्छे बॉलर्स के साथ करी है, के अगेंस्ट करी है, जहां पर उन्होंने जब जरूरत पड़ी है तो अच्छे से डिफेंड भी किया है। पर क्योंकि अनुभव जो है वो अजिंक्य रहाणे का ज्यादा है, तो आप यही चाहेंगे कि एक फाइनल में तो वही जाए पहले। और अगर न्यूजीलैंड को जीतना है तो क्या विलियमसन और लेथम का परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर उनको जीतना है तो? लेकिन अगर विलियमसन का रिकॉर्ड देखें इंग्लैंड में अभी तक, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो क्या वो पैटर्न जारी ही रहेगा या आप वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी क्लास सब जानते हैं? और टॉम लेथम भी बहुत ही अच्छे ओपनर है, 4000 रन 40 का एवरेज, लेकिन अभी तक स्ट्रगल किया इंग्लैंड में। अभी इवन जो सीरीज हुई थी अभी न्यूजीलैंड से, उसमें भी ज़्यादा स्कोर्स आए नहीं उनके। तो क्या इन दोनों का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है न्यूजीलैंड के लिए? देखिए, एक बात है कि केन विलियमसन की जो एवरेज जो है वो तो ऑब्वियसली उनकी क्लास को नहीं दर्शाती, पर हम्म। उनकी एवरेज क्यों लो है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने ज्यादा मैचेस नहीं खेलेंगे। 5 खेले न्यूजीलैंड हैं। ज्यादातर न्यूजीलैंड ज्यादातर 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेली। इनफैक्ट न्यूजीलैंड ने आखिरी सीरीज जो 5 टेस्ट मैचेस की थी वो 1971 में खेली थी। तो जब आप सिर्फ 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलते हो, तो एक प्लेयर के हिसाब से अगर आपका पहला मैच अच्छा नहीं गया तो आपके पास ज्यादा मौके नहीं है उसको सुधारने के। 3 या 4 टेस्ट मैच की सीरीज में, जैसे हमने चेतेश्वर पुजारा का देखा कि ऑस्ट्रेलिया में पहले 2 टेस्ट मैचेस में उन्होंने ज्यादा रन नहीं करे, पर उसके बाद अगली 4 पारियों में उन्होंने 350 किए, क्योंकि तब तक वो ढल चुके थे, सेट हो गए। उनको थोड़ा आइडिया लग गया था। तो ये भी होता है कभी कभी, दो टेस्ट मैचेस की सीरीज में आपको ज्यादा चांसेस नहीं मिलते कि आप किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं, जो कि होता है बहुत बारी। और रही बात टॉम लेथम की, तो टॉम लेथम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहेंगे न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि वो स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 2018-16 में शायद एक मैच था मुंबई में, विराट कोहली ने शतक बनाया था, जहां पर टॉम लेथन और मार्टिन गप्टिल ने एक 200 रन की पार्टनरशिप करी थी। एक वनडे मैच था और टॉम लेथन ने उस मैच में शायद, मैंने उतना बेटर उस टाइम पे कुलदीप और चहल को किसी को खेलते हुए नहीं देखा था। जिस तरीके से उन्होंने कुलदीप और चहल को स्वीप और कट किया था वो बहुत ही अच्छा था। और जो उससे बेटर सिर्फ टेस्ट उससे मैच। बेटर सिर्फ शिमरन हेटमायर नहीं खेला है उनको ओडीआईज में। तो हम्म। उनके पास सर्टेनली गेम तो है इस हिसाब से कि वो स्पिन को हैंडल कर सके। पर सिर्फ वही नहीं है, उनको ईशांत शर्मा को भी फेस करना पड़ेगा, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों को बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्पेशली जो उनका अराउंड द विकेट एंगल है, जब वो बॉल अंदर लाके बाहर निकालते हैं। उनकी रिस्ट पोजीशन बहुत इंप्रूव हो गई है जब से उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेला है।
तो वो भी एक उनके लिए समस्या बन सकती है। पर देखिए, इतना इम्पोर्टेंट मैच है कि जो भी प्लेयर परफॉर्म करेगा वो अपनी टीम के लिए फायदेमंद ही रहे। तो इससे ज्यादा कि हम किसी एक या दो खिलाड़ियों को फोकस करें, आई थिंक ये हमें बात करनी चाहिए कि कौन अपनी टीम के लिए किस तरीके से फायदे में आ सकता है और किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, ताकि वो ऑपोजिशन को दबा के रख सके। फिर भी आपकी तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इंडिया की तरफ से, इंडिया के लिए? आई थिंक रविचंद्रन अश्विन तो एक वो रहेंगे ही प्लेयर, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है प्रूव करने को अभी तक। मतलब अगर आप पिछली सीरीज देखें एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उससे पहले उनके ओवरसीज रिकॉर्ड पे हमेशा एक सवाल सा रहा है। तो वो है कि वो एक उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी, पर वो एक फाइफर नहीं ले पाए जो कि लोग उनके अगेंस्ट होल्ड करते। तो आई होप कि अश्विन जो है वो कर पाए। बट आई थिंक लोगों को भी थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा अपनी एक्सपेक्टेशंस में, क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं ये पेसर्स को ज्यादा सूट करते हैं। तो अगर अश्विन आपको दो या तीन विकेट दे दें एक एक पारी में, या टोटल में आपको 4-5 विकेट दे दें 20 में से, तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। बस ये देखना होगा कि वो किस तरीके से आउट करते हैं, क्योंकि जब केन विलियमसन इंडिया आए थे 2016 में, तो वो चारों इनिंग्स में रविचंद्रन अश्विन को ही आउट हुए थे। तो वो चीज है देखने वाली कि इस बारी वो कैसे फेयर कर सकते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन कैसे केन विलियमसन के अगेंस्ट बॉलिंग करेंगे, डेवन कॉनवे के अगेंस्ट कैसे करेंगे, इन सब के अगेंस्ट देखने लायक होगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडियन स्पिनर्स कैसे फेयर करते हैं, स्पेशली जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाएगी, जब सीम और स्विंग नहीं होगा। वो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कैसे इंडियन स्पिनर्स बॉलिंग करते और गुरकीरत, रोहित शर्मा के बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी ओवरसीज कंडीशन में अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपको रोहित शर्मा पे क्या कहना चाहेंगे? हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी टेक्निक में तो सुधार किया ही है। जैसे कि वो पिछले 6 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, तो वो बॉल पहले से तो बेटर लीव कर रहे हैं। उनका जो पेशेंस लेवल है इन टर्म्स ऑफ लीविंग द बॉल्स, वो बेटर हो गया। बट ये कहना कि वो एक सर्टनली एक अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, वो अभी बोलना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक बहुत सारी निगाहें विराट कोहली में भी होंगी कि हाँ। वो कैसा करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उनको भी एक शतक लगाए। 2019 में उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट बनाया था, और उसके बाद कोई शतक लगाया नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, और उस हिसाब से अगर आप देखें कि अगर उन्होंने ये मैच में अच्छी पारी खेली, तो भारत के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जो लोग उन्हें बोलते हैं कि वो प्रेशर गेम्स में नहीं परफॉर्म करते या नॉकआउट गेम्स में, वो भी थोड़ा चुप हो जाएंगे। कहते हैं वो चुप हो जाएंगे। बाकी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि विराट कोहली प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म किया है पहले भी। पर हाँ, उनका स्पेशली अगर न्यूजीलैंड 5 पेसर खिलाती है, तो विराट कोहली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको कोई एक प्लेयर चाहिए होगा जो कि काउंटर अटैक कर सके। और काउंटर अटैक भी ये नहीं कि आप सिर्फ हवा में मार रहे हैं। हर बॉल को मारें, बट थोड़ा आप शॉर्ट सिलेक्शन ऐसी रखें कि कोई भी फुल डिलीवरी या हल्की सी भी लूज डिलीवरी हो, आप उसपे चांसेस दें। तो विराट कोहली को उस मेथड के साथ सक्सेस भी मिला है, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे काफी। तो थैंक यू गुरकीरत, जुड़ने के लिए बहुत मजा आया, बहुत अच्छी बातचीत करी आपने। और जो एक्सपेक्ट किया था मैंने, बिल्कुल वैसे ही आप बोल रहे थे कि आपका क्रिकेटिंग ब्रेन जो है बहुत अच्छा है, मेरे को लगा ही था। तो बहुत मजा आया आपके साथ जुड़ के। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू विभोर, बहुत मजा आया। एंड होपफुली मैच का रिजल्ट अच्छा हो, मैच का रिजल्ट ऐसा हो जो कि हम सबको खुशी दे। और सिर्फ इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ही नहीं, बल्कि जो आगे होने वाली सीरीज है, जो श्रृंखला है इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें भी होपफुली हमें सक्सेस मिले। बिकॉज अब 14 साल हो गए जब हम लास्ट इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज जीते थे। एंड एक 5 मैच की टेस्ट सीरीज में जीतना और भी मुश्किल होता है एक 3 मैच की टेस्ट सीरीज से। बिकॉज जैसे मैंने पहले बोला था कि मैचेस जितने बढ़ते हैं, उतने आपको कम बैक करने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो होपफुली ये टेस्ट सीरीज अच्छी जाए, और हम एक विनिंग नोट पे ये टूर शुरू करें। So guys, this was Gurkirat Singh Gill who joined us today for previewing World Test Championship final and answering some questions regarding it. It was pleasure having you. So thank you Gurkirat once again. Thank you, Vibhor. I enjoyed it. And yeah, like I said, hopefully it's a good, great game. Okay, thank you.